Hello student, your Nana ma'am is again here with exercise number 5.1 arithmetic progression class 10. Okay, so today we are going to start exercise from question number 1. I have told you about arithmetic progression. It is always in the form of a plus d, a plus 2d and a plus 3d and so on. Okay. Here a is your first term and d is the common difference between all the terms. Okay. So first we are taking first question of 5.1. In question number first, some situations have given to you and you have to find out whether given situation, if you are making a sequence from given situation, it would be an AP or not. Okay. So first question is, in which of the following situation does the list of number involved make as AP and Y? Okay. The taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. You have to carry your NCERT book and your register when you are watching my video. Okay. And try to solve these questions with me. Okay. Then you will get my point what I am going to tell you. Okay. Taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees 15 for the first kilometer. So for if we are making a sequence by using this statement, first value would be 15. Okay. Your first value would be 15. Suppose you have hired a taxi, you have to pay 15 rupees for the hiring. Okay. Then 15 rupees will become your first term. And after using the taxi for subsequent distance, means you are going 1 kilometer by using this taxi, then you have to pay 8 rupees. Okay, 8 additional rupees means you have to pay 15 plus 8. 15 and plus 8 will become 23. Okay, now your next term will be 23. And again, if you are going 2 kilometer, this is for first kilometer, 1 kilometer. And if you are going second kilometer, means 1 more kilometer you are going, then you have to pay 31 rupees and then 39 and so on. Okay. Here you can see that the common difference 23 minus 15, 8, 31 minus 23, 8, 39 minus 31, 8. It means your common difference is same. That is why this sequence is an AP. Then you have to write yes, our sequence is an AP because the common difference are constant. Okay. Next question. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Okay. They are asking about a cylinder. एक very general हम example एक लेते हैं आपके लिए, जिसमें suppose आपके घर में कोई एक आपकी मम्मी ने आपको एक बॉक्स दिया है और इस बॉक्स में आपके पास कुछ टॉफीज हैं. सपोज कुछ आप कह सकते हैं स्वीट टॉफीज कुछ आपके इसमें हैं और मम्मा ने आपको बोला है कि 1/4 यू कैन टेक ईच डे. हर दिन में आप इस बॉक्स में से 1/4 पार्ट टॉफीज का ले सकते हैं. तो फर्स्ट डे सपोज इसके अंदर 100 टॉफीज हैं. सपोज ओके. फर्स्ट डे जब आपने इसमें से 1/4 निकालेंगे तो कितनी टॉफीज आपकी बाहर आएंगी? 75. टोटल कितनी थी? 100. फर्स्ट डे आपने जब निकाली, इसका 1/4 आपने निकाला, तो इस बॉक्स के अंदर 1/4 कितना होता है 100 का? 25. ओके. तो इस बॉक्स के अंदर कितनी रह गई? 75. बट अब जब आप नेक्स्ट डे 75 का 1/4 निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी इतनी नहीं बचेगी. ठीक है ना, ये चेंज हो चुकी होगी. और ये अब कितनी रह गई है? ये रह गई है 56.25. एंड हियर इफ यू आर चेकिंग द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम इन नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म के बीच में अगर आप कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आपका सेम नहीं मिलेगा आपको. अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, it means this sequence is not an AP. Okay. So every time you are taking 1/4 of remaining in the cylinder. Air जो आप बाहर निकाल रहे हैं, that is equals to 1/4 of remaining air from the cylinder, and remaining air is not equals to 100 times. Okay ना? जो आपका स्टार्टिंग में 100 टाइम्स था, जब आपने उसका 1/4 निकाला, अब वो सिर्फ 75 सपोज % रह गया, उसका 1/4 और कम हो गया, उसका 1/4 और कम, मीन्स उनका कॉमन डिफरेंस वो नहीं रहेगा.
जो आपका पहले फर्स्ट वैल्यू के बीच में आ रहा है. ओके, देन दिस सीक्वेंस विल नॉट बी एन एपी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. This is very simple, like first question. For first meter, for the digging for 1 kilometer you have to pay 150 and then 50 for subsequent meters. अगर आप एक कुआं खोद रहे हैं, उसके स्टार्टिंग को खोदने के लिए आपने 150 रुपीज पे किए. उसके बाद एवरी 1 मीटर, जैसे जैसे 1 मीटर खोदते चले जाएंगे, सपोज यहाँ तक के लिए आपने पे किया है 150, उसके बाद ये 1 मीटर और आपने इसको नीचे डिग किया है, तो इसमें आपने 50 और ऐड कर दिए कॉस्ट में, तो ये कितनी हुई अब 200. देन अगेन 1 मीटर और अगर आप इसे डिग करते हैं तो आपकी ये कितना हो गई कॉस्ट 150. हियर यू कैन सी that your sequence is in the form of AP. Can you tell me why? Yes, because the common difference between them is always constant, है ना. 200 minus 150 is equals to 50. 250 minus 200 is also equals to 50. Then your common difference is constant. That's why this sequence is an AP. Okay, मैं just आपको एक rough idea दे रही हूँ यहाँ पे, and I hope you will understand very well because very simple questions they are. आपको सिर्फ समझना है कि क्या कह रहे हैं हम क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट आपका है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. In my first video I have told you, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, जितने भी टाइम के लिए आप बैंक में मनी रखते हैं, अगर सपोज आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं एंड 10% रेट के अकॉर्डिंग आप 3 ईयर के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बैंक में एंड आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक की तरफ से, तो सिंपल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता है. ओके, 100 पे 10% के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में भी आपको 10 रुपीज मिलेंगे, सेकेंड ईयर में भी 10 रुपीज मिलेंगे एंड नेक्स्ट ईयर में भी 10 रुपीज मिलेंगे. बट इफ यू आर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, यू नो दैट योर प्रिंसिपल नेवर रिमेन सेम. ओके, एवरी ईयर योर इंटरेस्ट इज एडेड इनटू योर प्रिंसिपल एंड योर प्रिंसिपल ग्रेजुअली इंक्रीजेस विद द टाइम. एंड अगर प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली उसका आपका इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा. मीन सपोज आपने फर्स्ट ईयर का 10 रुपीज है, तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपका प्रिंसिपल 100 रुपीज का आपको 10 रुपीज इंटरेस्ट मिला, देन नेक्स्ट ईयर जो आपका प्रिंसिपल जाएगा वो 110 जाएगा, और 110 का 10% के अकॉर्डिंग आपके रुपीज बनेंगे 11, एंड ऐसे ही आगे आपका चेंज होता चला जाएगा. तो अगर ये चेंज हो रहा है, इट मीन्स इनके बीच का डिफरेंस भी चेंज होता चला जाएगा. सो this sequence is also not an AP because common difference is not constant. Okay, this is your very first question. Now we are going to second question. Write first 4 terms. I have discussed this question also in my first video. Write first 4 terms of an AP when the first term A and common difference are given as follows. I have told you before, if A has given and D has given, you can find out your AP very easily by using just adding D in your previous term. Like one question I am giving right now, I am going to solve for you, but next time you have to do it. Okay, if you are feeling any problem by in solving such type of questions, you can ask to me. Okay, first question is your A has given 10 and D has given 10. Both values are given 10. Okay, then your AP is equals to, start from A, your value is 10, then add D into your previous term. What is D? 10. Then 10 plus 10, 20, 20 plus 10, 30, 30 plus 10, 40, and so on. They are asking only 4 terms. Here they are asking only 4 terms, so you have to find 4 terms only. Okay, don't need to put the dots after that. Next, second question. Second question is very easy, you can do it. This is constant. देखो, एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, 3 तरह के आपके एपी निकल सकते हैं. एक देखो, अगर आप इसे देख रहे हैं, दिस इज इंक्रीजिंग. ओके, इंक्रीजिंग एपी, एपी इंक्रीज हो रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पर आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू भी पॉजिटिव है. अगर ए की वैल्यू नेगेटिव भी होती और डी की वैल्यू पॉजिटिव होती तो आपका एपी हमेशा
पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता, मीन्स इंक्रीज होता। ओके, अब यहाँ पर अभी जो सेकेंड आपको दिया हुआ है ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट योर ए हैज गिवन -2 एंड डी इज गिवन 0। तो आपका कहाँ से स्टार्ट होना है? -2 से। -2 + 0 -2, -2 + 0 अगेन -2 एंड अगेन -2। 4 टर्म्स आपने निकाली एंड यू आर गेटिंग -2 -2 -2 -2 because common difference is 0. There is no change at all. So this type of AP is called constant AP. Okay, this is increasing AP, this is constant AP. And if you are getting your value of D in minus sign, with minus sign, then your AP is gradually decreasing. You can see that in your third question. In third question, value of A is given 4 and D -3. 4 and -3. Then what is your first term? What is your first term? 4. Okay. And 4 जब आप प्लस करेंगे बट आपकी d की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, तो आपका एक्चुअली प्लस ना होके देखो इसको ऐसे करेंगे ना, 4 + -3, तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी? 4 - 3। मीन योर सेकेंड वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 - 3। क्या होगा सेकेंड वैल्यू आपकी फिर? 1। देन 1 में -3 करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? -2, देन -5। ओके, जैसे जैसे आप ग्रेजुअली आप माइनस करते चले जाएंगे, एक्चुअली यू आर डूइंग एडिशन बट ड्यू टू द साइन ऑफ माइनस देयर वैल्यू इज ग्रोइंग डिक्रीजिंग। ओके, तो ये आपका एपी की 4 टर्म्स है। नेक्स्ट टर्म्स, एंड इसका फोर्थ पार्ट वेरी इजी एंड फिफ्थ पार्ट यू कैन सॉल्व बाय योर ओन। ओके, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, होमवर्क है आपका। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग APs write the first term and common difference. This is very easy but you have to improve your calculation because normal algebraic expression सभी लोग कर लेते हैं बट जहां पर माइनस साइन आता है या फ्रैक्शंस आते हैं या फिर अंडर रूट वैल्यू आती है वहां पे बच्चे मोस्टली गलतियां करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर आपके जो मेन क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करूंगी। सिंपल क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं, फिर भी हम एक क्वेश्चन लेंगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपकी वैल्यू दी हुई है 3, आपका AP इस फॉर्म में दिया हुआ है 3, 1, -1 एंड -3। आपको क्या फाइंड करना है? A। आपको पता है व्हाट इज योर A? फर्स्ट वैल्यू इज 3 एंड व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ D? Always subtract first previous term from your next term. Never subtract next term from first. Okay? A1 - A2 नहीं करना है, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 हमेशा यही करना है, ठीक है। आपने क्या करना है? 1 - 3, तो क्या वैल्यू मिल रही है आपको? -2। This is your value of A and this is your value of D. Okay? It is clear? नेक्स्ट आपका मैं आपके लिए छोड़ती हूँ सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। थर्ड आपका एपी दिया है आपको 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ओके, दिस इज योर एपी। व्हाट इज योर ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म? 1/3। वेरी नाइस। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? A2 - A1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? 5/3 minus 1/3. Take the LCM. This is very simple because your denominators are equal. So you can directly subtract 1 from 5. What will you get? 4/3. Okay. It means your value of D is 4/3 and value of A is 1/3. Simple. One question we can also solve. सभी पार्ट इसके सब इजी हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक रूट वाली वैल्यू 12th पार्ट इसका, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जनरली बच्चों को रूट्स वैल्यू में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। रूट्स वैल्यू जब है बहुत सिंपल, आपने जस्ट ब्रेक डाउन करना है और देखना है कि आपके रूट के अंदर क्या वैल्यू बचती है। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम इसे। AP हैज गिवन √2, √8, √18 and √32. This is your AP. What is your first term? Your first term is √2. And what is your value of D? D, it means A2 - A1. √8
माइनस रूट 2। आपको लगेगा क्या सॉल्व हो गया? योर डिफरेंस इज रूट 8 माइनस रूट 2। नो, एक्चुअली दिस इज नॉट हियर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 8 को ब्रेक डाउन करेंगे। 8 को ब्रेक डाउन हम कैसे कर सकते हैं, 4 इंटू 2। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर बिगिनर, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग कंप्लीट डिटेल। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, बट जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे यू विल टेक वेरी लेस टाइम टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, 4, यहाँ पर आपको पता है रूट के अंदर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो 2 तो आपका रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला 2 ये तो स्क्वायर के रूट के अंदर ही रह जाएगा। योर वैल्यू इज 2 रूट 2 माइनस रूट 2। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को सॉल्व कराती हूँ, मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि रूट की वैल्यू अगर सेम है तो आप उसको कोई फ्लावर मान सकते हैं, आप उसे कोई टॉफी मान सकते हैं, कोई चॉकलेट मान सकते हैं। सपोज रूट 2 एक चॉकलेट है, तो कितनी चॉकलेट है, 2 चॉकलेट्स, और यहाँ कितनी है, 1 चॉकलेट। 2 चॉकलेट्स में से 1 चॉकलेट चली गई, तो कितनी बची, 1 चॉकलेट। मीन्स योर वैल्यू इज रूट 2। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चों को, इसको आप एक तरह से और कर सकते हैं, रूट टू कॉमन है दोनों में, रूट 2 आपने बाहर निकाला, ये कितना बचा, 2, और यहाँ क्या बचा, 1। 2 माइनस 1 इज 1, यानी कि रूट 2 इंटू 1 मीन्स रूट 2। योर वैल्यू ऑफ डी इज रूट 2। दोनों मेथड आप कर सकते हैं, बट इस तरीके की वैल्यूज को जल्दी सॉल्व करने के लिए कॉमन वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। जब आप बड़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरीके के रूट्स की वैल्यू आपको काफी जल्दी सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा 10th क्लास में। ओके, रूट 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट 2, यानी कि तुम्हारा b की वैल्यू आई है रूट 2 एंड a की वैल्यू आई है रूट 2। ओके, और कोई सी क्वेश्चन में आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मीन्स आपको चेक करना है कि कौन सा आपका एपी है। ओके, ये शायद हमने जो आपका 4th क्वेश्चन है उसका पार्ट कर लिया है। 3rd क्वेश्चन में आपके सिर्फ 4 ही पार्ट्स थे। ठीक है, आई डोंट हैव एक्चुअली माय एनसीईआरटी बुक विद मी, सो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ये जो पार्ट हमने किया है ये वाला, ये आपके क्वेश्चन 4 का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर, ये आपका वैल्यू आ रही है इसकी 12th, क्वेश्चन 4 का 12th पार्ट है ये। ओके, इसमें आपको चेक ये करना है कि क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो कैसे चेक करते हैं हम एपी, जब हमें ये चेक करना होता है कि कोई सीक्वेंस एपी है या नहीं, हम हमेशा ये चेक करते हैं कि उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं। ओके, पहले इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। रूट 8 मीन्स इसको आप कैसे लिखेंगे, a2 माइनस a1। क्या वैल्यू है, रूट 8 माइनस रूट 2। अभी जस्ट हमने सॉल्व की है, इस रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 माइनस रूट 2। वैल्यू क्या आ रही है आपकी, रूट 2। फर्स्ट वैल्यू आपका जो डी आया है वो आ रहा है रूट 2। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, a3 माइनस a2। आपको सारी वैल्यूज का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। अगर 4 दी है तो 3 बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर 5 वैल्यूज दी हैं तो 4 टाइम्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू क्या है, रूट 18 माइनस रूट 8। अब ये 18 को फिर अगेन हम खोलेंगे, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 9 इंटू 2। ओके, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, वो बाहर आ जाएगा आपके रूट से, और यहाँ पर ये 8, अभी हमने रूट 8 की वैल्यू क्या लिखी थी, 2 रूट 2, इसको हम यहाँ रखेंगे 2 रूट 2। 3 रूट 2 मीन्स 3 चॉकलेट्स, 2 रूट 2 मीन्स 2 चॉकलेट्स। तो 3 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट्स गई, कितनी बची आपकी, रूट 2 मीन्स 1 चॉकलेट। दिस इज वेरी सिंपल। मीन्स आपकी पहली डी की वैल्यू भी रूट 2 आई थी, दूसरा भी, अभी एक और चेक करना है, अभी नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो हमारा ये चेक करेंगे हम, a4 माइनस a3। वैल्यू ऑफ a4 इज रूट 32 माइनस, एंड वैल्यू ऑफ a3 इज रूट 18। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, 4 रूट 2, और रूट 18 के लिए अभी हमने क्या वैल्यू बनाई थी, 3 रूट 2। 4 चॉकलेट्स माइनस 3 चॉकलेट्स इज इक्वल्स टू 1 चॉकलेट। ओके, अब आप देख सकते हैं कि आपकी तीनों टाइम्स जो 3 बार हमने कैलकुलेशन की है, आपकी डी की वैल्यू कांस्टेंट रही है। अगर डी की वैल्यू कांस्टेंट है तो इट मींस जो गिवन सीक्वेंस है वो एक एपी है। यस, दिस सीक्वेंस इज एन एपी। हमने यहाँ पहले एपी रखा था क्योंकि हमने इसे क्वेश्चन 3 कंसीडर किया था, बट दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4
in which you have to check. So you cannot write AP in starting में आप AP नहीं लिखेंगे, just take a series like this and check करेंगे. आपने check किया, yes their difference, common difference is constant, and last में आप लिखेंगे yes this series is an AP. Okay, इसके बाकी सभी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं. एक क्वेश्चन नंबर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपको इसकी किस पार्ट में प्रॉब्लम आई है. अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क डायरेक्टली. ओके, थैंक यू सो मच. डू योर वेल, ट्राई योर हार्ड एंड बी विद मी. कीप इन टच विद मी. सब्सक्राइब माई चैनल. इफ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. बाय बाय.